Hello friends, now I am going to start a new topic in homeopathic pharmacy, that is scales of preparation of homeopathic medicine. Otherwise it is also known as scales of potentization. So first of all, how many scales are there? There are all total 3 scales. They are decimal scale, centesimal scale and 50 millisimal scale. Here decimal scale, centesimal scale and 50 millisimal scale. So in the process of potentization, we know that there are two processes. They are trituration and succussion. In trituration process, we use decimal scale and centesimal scale. And in succussion process, we know that there are two processes. They are trituration and succussion. In trituration process, we use decimal scale and centesimal scale, and in succussion process we use decimal scale, centesimal scale and 50 millisimal scale. That is all the three scales of potentization are used in the succussion process, but only two, that is our you can see that I have written here ratio. Ratio in decimal scale is 1 is to 9 and ratio in centesimal scale is 1 is to 99 and ratio in 50 millisimal scale is 1 is to 50,000. 50,000, you can count the zeros also here, and 5 has 4 zeros, that is 50,000. In 50 millisimal scale the ratio is 1 is to 50,000. So here are some few points you can write in the exam. That is in the ratio, here it is given that 1 is to 9. This is in this ratio 1 denotes part of drug used and 9 denotes the part of vehicle. Here you can see that in 1 is to 9, 1 denotes the part of the drug and 9 denotes the part of the vehicle used. In centesimal scale also, 1 denotes the part of the drugs used and 99 denotes the part of the vehicles used. Here also the same case, 1 is for part of drug and 50,000 is for part of the vehicle. So here you can notice one thing, that 1 is constant. 1 is constant for every scale. Here 1 1 1, 1 is to 9, 1 is to 99 and 1 is to 50,000, and the denominator 1 and 9 99 50,000 only varies. 1 is constant and the vehicle part of the vehicle is varying in each case, but the part of the drug is constant. So few points are, nowadays all three scales are used, but 50 millisimal scale is relatively seldom. क्या होता है ना, आजकल हम लोग 3 स्केल्स यूज़ करते हैं, लेकिन 50 मिलीसिमल स्केल को इतना भी यूज़ नहीं करते। और फ्रांस में सेंटीसिमल स्केल को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में सेंटीसिमल स्केल को प्रीडोमिनेंटली यूज़ करते हैं, और जर्मनी में डेसिमल स्केल को यूज़ करते हैं। Then come to the first one, that is decimal scale. In decimal scale we have seen that the ratio is 1 is to 9. It was introduced by Dr. Constantine Hering. It was introduced by Dr. Constantine Hering. Let me highlight it, this one. Dr. Constantine Hering had introduced the decimal scale. Then Weissenmeyer gave more detailed description in 1835. Then its principle of decimal scale is, first potency should contain 1/10 of the original drug and succeeding potency should contain 1/10 of part of the previous potency. तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि
फर्स्ट पोटेंसी जो भी बनाएंगे, पहली बार अगर जो फर्स्ट वाला पोटेंसी हम लोग बनाने वाले हैं, उसमें ओरिजिनल ड्रग जो भी क्रूड ड्रग सब्सटेंस होगा उसका 1/10 पार्ट हम लोग लेंगे पहले, एंड द सक्सीडिंग पोटेंसी, द नेक्स्ट पोटेंसी शुड कंटेन 1/10 पार्ट ऑफ द प्रीवियस पोटेंसी। दैट इज़ हिंदी में बोल देती हूँ कि जो भी बना होगा फर्स्ट पोटेंसी में, जो भी बना होगा उसका 1/10 पार्ट हम लोग लेंगे सक्सीडिंग वाले में, मतलब नेक्स्ट। अगर हम लोग फर्स्ट पोटेंसी बना रहे हैं और उसमें 1/10 पार्ट ऑफ द क्रूड ड्रग सब्सटेंस ले लिए, तो नेक्स्ट सेकेंड वाले पोटेंसी में क्या करेंगे, फर्स्ट पोटेंसी में जो भी आया था हम लोगों का उसमें से 1/10 पार्ट ही लेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 1/10 पार्ट। ये इसका प्रिंसिपल है। और इसका तो रेशियो हम लोगों को पता ही है कि 1:9। देन द ड्रग स्ट्रेंथ इज 1/10। ये दिस वन इज़ वेरी important. It may come in some government examinations or competitive examinations also. So the drug strength in decimal scale is 1:9 and the ratio is the drug strength is 1/10 and the ratio is 1:9. Then how we can denote the decimal scale? So the decimal scale is denoted by x or d. The decimal scale is denoted by x or d, most commonly by x. That is, first potency should be written as 1x, the second 2x, third 3x, and so on. So next, what are the applications of the decimal scale? The application of decimal scale is old method of preparation. Old method, we know that old method of preparation was by our master Hahnemann. Then the second one is to make lower potency strength. लोअर पोटेंसी मतलब 1x हम लोगों ने देखा कि डिनोटेड बाय x होता है। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि अगर हम लोग 1x 2x 3x ये सब लोअर पोटेंसी वाले हैं, अगर मैं कहूँ 100x है, 100x तो लोअर पोटेंसी के अंदर नहीं आएगा ना, तो 1x 2x 3x ये सब लोअर पोटेंसी में आएगा। तो लोअर पोटेंसी वाला अगर हम लोग कुछ बनाना चाहते हैं तो उसमें हम लोग क्या लेंगे, डेसिमल स्केल यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला क्या था ना, इन न्यू मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर। अगर न्यू मेथड में हम लोगों को मदर टिंचर का प्रिपरेशन चाहिए तो उसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेसिमल स्केल यूज़ कर सकते हैं। देन एप्लीकेशन के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या होता है प्रिपरेशन ऑफ पोटेंसीज अंडर दिस स्केल। तो डेसिमल स्केल के अंदर कैसे हम लोग पोटेंसीज को प्रिपेयर कर सकें। तो लेट्स सी हाउ वी मेक। आई हैव नॉट रिटन द टॉपिक इन, लेट मी शो यू नाउ दैट potencies can be of different type, that is liquid potencies and solid potencies. The potencies are of two types, and solid potencies. तो पहले हम लोग देखते हैं कि लिक्विड पोटेंसी में हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकें। सो फॉर लिक्विड पोटेंसी के लिए पहले हम लोगों को क्या लेना है, लिक्विड ये वाले में, सॉलिड। लिक्विड में हम लोग क्या करेंगे ना, पहले वेल क्लीन राउंड फ्यूल लेंगे। एक कंटेनर में ये क्लीन होना चाहिए और इसका कैपेसिटी 15 ml होना चाहिए। इसमें हम लोग एक वेलवेट कॉर्क होता है, कॉर्क फिट होना चाहिए। फिर इसको हम लोग 1x तक
मार्क होना चाहिए, ये वाला 1x तक मार्क्ड होना चाहिए। देन द कर्व शुड बी रिमूव्ड, इसे लगाने के बाद इसे खोल देना चाहिए। देन मदर टिंचर सॉल्यूशन, टू जिससे भी हम लोगों को जो भी मदर टिंचर सॉल्यूशन को हम लोगों को with that we need to be potentized should be checked, and then 1 ml of the mother tincture, ये let it be, ये है MT, इसमें से हम लोग क्या लेंगे 1 ml, इसका 1 ml लेके हम लोग उसमें ऐड करेंगे, इसका 1 ml ऐड किए। फिर क्या करेंगे, हम लोगों को पता है कि इसका रेशियो डेसिमल स्केल में 1:9 होता है। अगर हम लोग ड्रग सब्सटेंस का 1 ले लिए तो 9 पार्ट्स किसका लेंगे, व्हीकल का ऑब्वियसली। सो व्हीकल का हम लोग 9 पार्ट्स लेंगे। कौन से लेंगे, यहाँ पर हम लोग लेंगे रेक्टिफाइड स्पिरिट का 1 पार्ट, रेक्टिफाइड स्पिरिट का 9 ml लेंगे। तो ये सब मिला के कितना हुआ, 9 ml प्लस 1 ml इज इक्वल टू 10 ml हुआ। तो ये वाला कंटेनर कितने ml का था, वॉल्यूम इसका 15 ml का था। तो 10 ml 15 ml का कितना पार्ट हुआ, 2/3 पार्ट हुआ। ये वाला कंटेनर को मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये वाला कंटेनर अभी 2/3 पार्ट फिल हो गया, 2/3। फिर ये वाला जो 1/3 पार्ट है ये अभी भी एम्प्टी है। इसे क्यों एम्प्टी रखते हैं, क्योंकि हमें डाउनवर्ड स्ट्रोक्स अप्लाई करने हैं, इसलिए हम लोग इसे खुला छोड़ देते हैं। फिर क्या करेंगे, इसको ये कॉर्क जो था, ये कॉर्क को फिर से यहाँ पे लगा लेंगे, ये वाले कॉर्क को यहाँ पे लगा लिए। उसके बाद हम लोग 10 इक्वल डाउनवर्ड स्ट्रोक्स अप्लाई करेंगे, 10 इक्वल डाउनवर्ड स्ट्रोक्स अप्लाई करने के बाद हमारा 1x इज रेडी। देन हम लोग देखेंगे, ये वाला तो लिक्विड पोटेंसी वाला कंप्लीट हो गया। फिर आता है ये सॉलिड वाला। सॉलिड पोटेंसी कैसे बनाएंगे, सॉलिड पोटेंसी, फिर से सॉलिड पोटेंसी बनाने के लिए हमें चाहिए सॉलिड को हम लोग को क्या बनाना है, 1x पोटेंसी बनाना है, जिसका कि रेशियो 1:9 होना चाहिए। फिर हम लोग को 1 पार्ट ऑफ द क्रूड ड्रग सब्सटेंस, क्रूड ड्रग, 1 पार्ट ऑफ क्रूड ड्रग प्लस 9 पार्ट्स ऑफ व्हीकल लेना चाहिए। और व्हीकल हम लोग यूज़ करेंगे शुगर ऑफ मिल्क। व्हीकल कौन सा यूज़ करेंगे, शुगर ऑफ मिल्क। देन ये सब मिला के 1:9 रेशियो कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 1 आवर तक ट्राइचुरेशन करेंगे। ट्राइचुरेशन 1 आवर को हम लोग डिवाइड करेंगे 20 मिनट्स, 20 मिनट्स एंड 20 मिनट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। उसमें 3 अलग अलग स्टेप्स हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियोस आने वाले हैं हमारे चैनल में, उसी में बताएंगे। 3 अलग अलग स्टेप्स होते हैं। उसके बाद 3 अलग अलग स्टेप्स के बाद हम लोग डिवाइड करेंगे 9 पार्ट्स में। देन ये सब होने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे लोअर पोटेंसी तक बना सकते हैं।
तो 6 पोटेंसी तक हम लोग बना सकते हैं। ये हो गया कंप्लीट हम लोगों का। देन we will see centesimal scale. The centesimal scale was invented by Mr. Hahnemann and introduced by him. Now we will see the second scale, that is the centesimal scale. The centesimal scale was introduced by the founder of homeopathy, Master Hahnemann, in 5th edition of Organon of Medicine in the year 1833, and its principle was that first potency should contain 1/100th part, 1/100th part of the original drug, and each succeeding potency should contain 1/100th part of the preceding potency. So ये वाला पार्ट आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा, तो मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो ओरिजिनल ड्रग लेंगे, ओरिजिनल ड्रग वाला क्या होना चाहिए, 1/100th होना चाहिए फर्स्ट पोटेंसी में जो लेंगे। तो 100 ओरिजिनल ड्रग को 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसमें से एक पार्ट को लेंगे, तो क्या हुआ, वो 1/100 पार्ट बन गया। उसके बाद जो फर्स्ट पोटेंसी वाला बनेगा, जो 1C बनेगा, उसमें से 100 उसको भी हम लोग 100 पार्ट बनाएंगे, 100 पार्ट में से एक पार्ट को लेंगे। ये वाला ये प्रिंसिपल होता है सेंटिसिमल स्केल का। देन कम टू द डेजिग्नेशन. द डेजिग्नेशन इज सिंपली अफिक्सिंग द न्यूमेरिकल्स आफ्टर द नेम ऑफ द ड्रग. क्या होता है ना, सिंपली ड्रग के बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स डाल देते हैं, जैसे कि एपिस्मेल 3, एपिस्मेल 6, क्या होता है ना, ये वाला बस न्यूमेरिकल, ये 3C पोटेंसी का होगा तो एपिस्मेल 3 डाल दिए। 6 पोटेंसी का होगा तो लास्ट में न्यूमेरिकल ही ऐड करना है, तो हम लोग 6 डाल दिए। ऑल्सो मे बी डिनोटेड एज एपिस 3C, हियर C मीन्स 100। हम लोग ऐसे नंबर डाल सकते हैं या फिर 3C भी लिख सकते हैं। देन C मीन्स 100, C मीन्स क्या होता है, C मतलब 100 होता है। देन द एप्लीकेशन ऑफ द स्केल, एप्लीकेशन इन ओल्ड मेथड, it was established by Hahnemann. We know that the old method was by Hahnemann. Then it is used to make higher potencies or higher strength. क्या होता है ना, ये C है, C मतलब 100 होता है, तो लोअर पोटेंसी 1x 2x 3x ये सब हम लोग डेसिमल स्केल में भी बना सकते हैं, लेकिन सेंटिसिमल स्केल से हम लोग हायर पोटेंसी बना सकते हैं, जैसे कि 1C 2C, 1C मतलब 100 होता है, 2C मतलब 200 होगा, 3C 300। इससे ही हम लोग हायर पोटेंसी का ये सेंटिसिमल स्केल यूज़ करके बना सकते हैं। उसके बाद क्या आया है एडवांटेज इसका एप्लीकेशन, इन न्यू मेथड सेंटिसिमल स्केल हैज़ बीन डिस्कार्डेड बाय द न्यू ऑफिशियल फार्माकोपिया। जो हमारा न्यू ऑफिशियल फार्माकोपिया है उसने सेंटिसिमल स्केल को हटा दिया है। क्यों हटा दिया है, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ द ड्रग स्ट्रेंथ 10% होता है। देन इन द न्यू मेथड ओनली डेसिमल स्केल इज यूज्ड, न्यू मेथड डेसिमल स्केल ओनली यूज्ड। Then come to 50 millisimal scale. The 50 millisimal scale is also known as LM scale, and it is the latest scale of the potency, and it was introduced in the 6th edition of Organon of Medicine. क्या हुआ था ना, इसे 6th edition of Organon of Medicine में इंट्रोड्यूस करवा गया था। Then the name 50 millisimal was not given by Master Hahnemann but by Pierre Schmidt. स्मिथ थे, एक स्मिथ नाम के फिजिशियन थे, जिन्होंने, जो कि जेनेवा, जो कि स्विट्ज़रलैंड का एक कंट्री है, वहाँ के थे वो,
उन्होंने ये नेम 50 से मिलीसिमल नेम दिया था। बट हैनीमैन ने कौन सा नेम दिया था? हैनीमैन ने एक नेम दिया था जो कि रिन्यूड डायनामाइजेशन है, रिन्यूड डायनामाइजेशन, एंड द रेशियो ऑफ 50 मिलीसिमल स्केल इज 1:50,000, 1:50,000। इसे कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था ना? introduced in the 6th edition of Organon of Medicine in Aphorism 270, Aphorism 270 में इंट्रोड्यूस किया गया था। देन आता है then potencies prepared under this method are named by Smith as 50 millisimal potencies because the material part of the medicine was said to be decreased by 50,000 times for each degree of dynamization। क्योंकि जो मटेरियल पार्ट था उसे हम लोग 50,000 टाइम्स डिक्रीज करवा दिए थे। ईच डिग्री ऑफ मतलब पोटेंटाइजेशन में हम लोग 50,000 टाइम्स डिक्रीज करवा रहे थे। किसे ना? वो जो मटेरियल ड्रग सब्सटेंस, क्रूड ड्रग सब्सटेंस, जो नेचुरल ड्रग सब्सटेंस था उसे हम लोग 50,000 टाइम्स डिक्रीज कर रहे थे। इसलिए स्मिथ ने ये पोटेंसी का, ये स्केल का नाम दिया 50 मिलीसिमल पोटेंसीज। देन द डेजिग्नेशंस। डेजिग्नेशन क्या होता है ना? कौन से देश में ये स्केल कैसे डिनोट किया जाता है? इन इंडिया वी डिनोट इट एज 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन। इन बांग्लादेश we denote it as m/1, m/2, m/3 and so on. In western countries of the world 1/0, हम लोग इंडिया में 0/1 लिखते थे, लेकिन ये लोग उल्टा लिखते हैं। Do not be confused in between these two। ये 1/0, 2/0, 3/0, 4/0 था। लेकिन हमारे जो मास्टर हैनीमैन थे वो क्या लिखते थे ना? 0/1, 0/2, 0/3 and so on। It will be easier to remember that in India and Hahnemann we use 0/1, 0/2, 0/3, and Hahnemann also was using this one. It would be better to write LM/1, LM/2. To avoid all these confusions, it will be better to write LM/1, LM/2, LM/3 and so on. Here in LM, the L stands for 50 and M stands for millisimal. L stands for 50 and M stands for millisimal. Then the preparation of 50 millisimal potencies। 50 मिलीसिमल पोटेंसी को हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसका एक स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है। इट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड इट विल बी गुड एंड आई कैची इफ़ यू राइट इट in the exam in this format. It will be very good and eye catching. The examinee will be very happy क्योंकि उनको तो ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन से वो अच्छे से समझ भी पाएंगे। So let's start it. So in the first stage it will be of 1 hour. The first stage will be of 1 hour and it will be first trituration and the ratio will be 1/100, 1/100 पार्ट लेंगे। तो 1 grain of powder drug, ग्रेन से कंफ्यूज मत होना क्योंकि ग्रेन मतलब वॉल्यूम या क्वांटिटी। लेट कंसिडर द ग्रेन इज वॉल्यूम और क्वांटिटी। 1 पार्ट ऑफ पाउडर ड्रग लेंगे और 100 पार्ट ऑफ सुगर ऑफ मिल्क लेंगे। sugar of milk is the vehicle in this case. Then ये जो 1 hour था, 1 hour is 60 minutes. So 60 minutes को हम लोग डिवाइड करेंगे 20 मिनट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड की। फर्स्ट 20 मिनट्स में हम लोग उसे ग्राइंड करेंगे, फिर सेकेंड 20 मिनट्स में स्क्रैपिंग करेंगे और लास्ट 20 मिनट में हम लोग उसे मिक्सिंग करवाएंगे। फिर आया हमारा सेकेंड स्टेज। इट इज़ ऑल्सो ऑफ 1 आवर। सेकेंड स्टेज इज़ ऑल्सो 1 आवर। इसमें क्या करते हैं हम लोग? सेकेंड ट्राइचुरेशन करते हैं और इसका देखिए 1/100 इंटू 1/100 इज इक्वल टू 1/10
10⁴ होगा. You can write it here 1/10⁴. इसमें क्या करेंगे हम लोग, अच्छे से ध्यान से देखना. 1 grain of first saturation plus 100 grains of sugar of milk. क्या फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या किए थे हम लोग, पाउडर ड्रग लिए थे, लेकिन सेकेंड स्टेज में क्या लेंगे, फर्स्ट सैचुरेशन का जो भी आया होगा उसका 1 ग्रेन लेंगे और 100 ग्रेन्स ऑफ शुगर ऑफ मिल्क लेंगे. इससे भी हम लोग 60, ये जो 1 आवर था, इसे 60 मिनट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 20, 20 एंड 20 ग्राइंडिंग, स्क्रैपिंग, मिक्सिंग विल बी कंटिन्यू. देन थर्ड स्टेज भी सिमिलर है. इसमें क्या, ये क्या है, थर्ड सैचुरेशन है. इसमें क्या लेंगे, 1 ग्रेन ऑफ सेकेंड सैचुरेशन. ये थर्ड स्टेज है, तो इससे पहले वाला जो था सेकेंड सैचुरेशन था. सेकेंड सैचुरेशन का हम लोग 1 पार्ट लेंगे और 100 पार्ट्स क्या लेंगे, शुगर ऑफ मिल्क. इससे भी हम लोग ग्राइंडिंग, स्क्रैपिंग, मिक्सिंग करेंगे 20 मिनट्स वाला. ये जो थर्ड स्टेज था वो सेकेंड स्टेज से इट वाज ए बिट सिमिलर, बट द फोर्थ स्टेज इज़ क्वाइट डिफरेंट. इसमें क्या लेंगे हम लोग, 1 ग्रेन ऑफ थर्ड सैचुरेशन प्लस 100 ड्रॉप्स ऑफ डिस्पेंसिंग अल्कोहल लेंगे. यहाँ पे हम लोग शुगर ऑफ मिल्क नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं 100 ड्रॉप्स ऑफ डिस्पेंसिंग अल्कोहल प्लस 400 ड्रॉप्स ऑफ प्यूरिफाइड वाटर. तो क्या हुआ, 1/10⁵ था इंटू 1/500. ये 100 और 400 मिलके 1/500 इज इक्वल टू 1/5 इंटू 10⁻, कितना होगा, 3, 2, 2, 3, 2, 5, 7, 8, 10⁸, 50 इंटू 10⁷. ये जो आएगा फोर्थ स्टेज में, इसे हम कहेंगे मदर टिंचर. जो फाइनली आएगा उसे मदर टिंचर कहेंगे. तो मदर टिंचर से हम लोग 0/1 पोटेंसी, जो फर्स्ट पोटेंसी, उसे कैसे बनाएंगे, लेट्स सी. 1 ड्रॉप ऑफ मदर टिंचर लेंगे, उसके बाद उसके साथ मिलाएंगे 100 ड्रॉप्स ऑफ प्योर अल्कोहल. देन इसे 1/50 इंटू 10⁷ इंटू 1/100, ये 100 ड्रॉप्स का था. तो इससे फिर से हम लोग 100 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स देंगे. ये डाउन वाला एरो को डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, 100 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स देने से ये 0/1 पोटेंसी और LM/1 LM, फर्स्ट LM पोटेंसी बन गया. देन फर्दर पोटेंसी फिर से कैसे बनाएंगे हम लोग, 1 ग्लोब्यूल ऑफ द प्रीवियस पोटेंसी डिजॉल्व इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर. जो प्रीवियस पोटेंसी था, मतलब फर्स्ट पोटेंसी का जो भी था, उसमें से 1 ग्लोबुल लेंगे, उससे डिज़ोल्व करवाएंगे इन ए ड्रॉप ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करके लेंगे, प्लस 100 ड्रॉप्स ऑफ प्योर अल्कोहल. वहाँ पे भी लिए थे 100 ड्रॉप्स ऑफ प्योर अल्कोहल, यहाँ पे भी 100 ड्रॉप्स ऑफ प्योर अल्कोहल. देन 100 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स. 100 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स के बाद क्या बन गया हमारा, फर्दर पोटेंसी. जो भी डिज़ायर्ड पोटेंसी होगा, अगर हम लोग यहाँ पे 3 LM लेना चाहेंगे, LM/3 लेना चाहते हैं, तो सेकेंड वाले प्रोसेस से, सेकेंड पोटेंसी से हम लोग एक ग्लोबुल लेंगे, उसको 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करवाएंगे, उसके बाद 100 ड्रॉप्स ऑफ प्योर अल्कोहल डालेंगे और 100 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स भी डालेंगे, तो हमारा थर्ड वाला पोटेंसी प्रिपेयर हो जाएगा. इससे ही हम लोग कोई भी पोटेंसी बना सकते हैं. तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा 50 मिलीसिमल पोटेंसी एंड ऑल द स्केल्स ऑफ द potentization. So for now it is over, and tomorrow I will bring you another topic. So till then, stay tuned.